आज what is my agenda? My agenda is to give a clarity around a concept that is called as reinforcement learning. Okay, and when I say reinforcement learning, what is the meaning of it, right? And how come it is different from other learnings like machine learning or like deep learning? Okay, so let me start with a domain from machine learning side and all, and then I will gradually move to a reinforcement learning. And today, guys, what is my agenda? My agenda is to give a theoretical background today. So probably from next session, we can start performing, some, practicals around that, right? Because once we have a clarity that what we are trying to do, what we are trying to achieve, right? And probably we can use some, technology stack to perform some practicals around reinforcement learning. And guys, a disclaimer is this class is going to be a little tough basically for you, right? And that's why I want to spend a good time on making some concepts very clear to you, so that in between you do not face the issues regarding the understanding of the concepts. And in this a class, guys, you may have to put some extra efforts from your side as well, कि क्लास के अलावा भी जो है आपको टाइम देना पड़ेगा. So guys, now we know this concept that to make a AI system, right? To make an AI system, you can use machine learning or deep learning, okay? And again, guys, this machine learning can be defined in a way that will make it easy for you. चलो मैं उसको define करता हूँ. Let's say, guys, in the mathematics you have this y is equal to fx, right? Mathematics में ऐसा एक a relationship होता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि this x that you see here is your independent variable, right? This is your independent variable. And y that you see in this relationship is called your dependent variable, right? This is independent variable and this is dependent variable, and this f that you see here is called as mapping function, right? Which gives you a relationship कि कैसे x और y के बीच में relationship है. So y is equal to fx is there. And guys, in case of mathematics, right? So whenever we are solving some mathematical problems, what is there? In mathematics, what is given to us? X is given to us and the mapping function is also given to us. These two things are given. ये दो चीजें हमें दी जाती हैं, right? और क्योंकि हमें ये relationship तीन चीजों के बारे में बता रही है, so we have three parameters, right, which are related. और अगर क्योंकि हमें जब दो पैरामीटर पता है तो इजीली हम तीसरे पैरामीटर का पता कर सकते हैं, राइट? तो अगर हमें x दे रखा है और f दे रखा है तो हम क्या पता कर सकते हैं? We can find out y. That is our dependent variable, that is our output. ये कहानी मैथमेटिक्स की है. This is from the field of mathematics. But when you make a turn from maths domain and move to machine learning domain, तो वहाँ पे क्या होता है? In that case, guys, what happens? We are given x and we are given y. हमें x भी दिया जाता है
और हमें y भी दिया जाता है. तो x is given and y is given, and now because x and y is given to us, what we can do, using this we can find out, right, mapping function. We can find out mapping function. क्यों? क्योंकि अब ये दो चीजें दे रखी हैं तो तीसरी चीज पता की जा सकती है. तीसरी चीज है भी क्या उस रिलेशनशिप में? वो मैपिंग फंक्शन है, राइट. एंड नाउ गाइज, वंस यू नो द मैपिंग फंक्शन, जब एक बार आपको मैपिंग फंक्शन पता चल गया, राइट, तो क्या कर सकते हैं? यूजिंग दैट मैपिंग फंक्शन आप किसी भी न्यू वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, राइट, ये तो पुरानी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई थी, आप किसी भी न्यू वैल्यू ऑफ एक्स के लिए क्या पता कर सकते हो? y का पता कर सकते हो, आउटपुट का पता कर सकते हो, y का पता कर सकते हो, राइट. क्यों? क्योंकि मेरे पास x एंड y थे, उससे मैंने क्या पता कर लिया? मैपिंग फंक्शन पता कर लिया. और जब मुझे वापस से मैपिंग फंक्शन पता चली गया है, तो अब मैं किसी भी न्यू वैल्यू ऑफ x के लिए y को कैलकुलेट कर सकता हूं. द कैलकुलेशन ऑफ y using this mapping function f and your new value of x, this activity is called as prediction in machine learning, guys. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? prediction in ML. इसको हम लोग prediction कहते हैं. इसी को हम predict करना कहते हैं. Okay. Now guys, finding out this mapping function, ये mapping function को पता करना machine learning में training कहलाता है. This is called as training, right? कि आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम को, आप अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं. तो ट्रेन करने का क्या मतलब होता है? कि हमने उसको क्या दे दिया है? x एंड y दिया है. बेसिकली x और y को हम अब आगे से डेटा सेट कहेंगे. क्या कहेंगे? विल कॉल एज अ डेटा सेट. और इस डेटा सेट में क्या है? इस डेटा सेट में x है और इस डेटा सेट में y है. मैथमेटिक्स की दुनिया के हिसाब से x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है. लेकिन मशीन लर्निंग की दुनिया के हिसाब से अब हम x को कहेंगे फीचर और y को कहेंगे लेबल. ये हमारी कहानी, राइट. इसका मतलब हमारे डेटा सेट में हमें क्या मिलेगा? हमें फीचर मिलेंगे और हमें लेबल मिलेगा. ये फीचर बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट नाम चेंज हो गया, इसका नोमेनक्लेचर चेंज हो गया, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जो अब लेबल कहलाएगा, राइट. एंड इन अवर डेटा सेट, इफ वी हैव फीचर एंड लेबल बोथ, व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड आउट द मैपिंग फंक्शन, राइट. एंड दैट एक्टिविटी इज बेसिकली कॉल्ड एज ट्रेनिंग. एंड वंस द ट्रेनिंग इज डन, दैट मीन्स यू हैव फिगर्ड आउट द मैपिंग फंक्शन, you can use that mapping function to perform a prediction on the new data, on the new feature, on the new value of feature basically, right. ये एक process, इसको हम पूरा का पूरा machine learning a process कहते हैं. Now guys, जैसा कि अब क्या है यहाँ पे, आप इस चीज को समझिए. मैपिंग फंक्शन को पता करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. वी कैन हैव a multiple ways to find out the mapping function if the data set is given to you, right. और उन्हीं methods को हम क्या कहते हैं? we call them as algorithms. हम क्या कहते हैं उनको? algorithms कहते हैं उनको, ठीक है. जैसे तुमने मुझे बताइए, सभी लोगों ने वो डेटा स्ट्रक्चर का वो टॉपिक पढ़ा है क्या? सॉर्टिंग वाला, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ी हैं सभी लोगों ने? सॉर्टिंग एल्गोरिथम, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट. क्या ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आप लोगों ने पढ़ी हैं? ओके. तो मेरे साथ लगता है आपके किसी भी सिलेबस का पार्ट ये नहीं रही. कोई बात नहीं, चलो ठीक है, उस चीज को छोड़ देते हैं, नहीं पता तो. नाउ गाइस, टेल मी. सो जब मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ कि वी हैव लॉट ऑफ मेथड्स, राइट. ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम मैपिंग फंक्शन को पता कर सकते हैं, और उन तरीकों को ही हम एल्गोरिथम कहते हैं. वी कॉल देम एज एल्गोरिथम्स, राइट. और बहुत सारी एल्गोरिथम्स अब यहाँ पे हो सकती हैं जिनके थ्रू हम मैपिंग फंक्शन पता करते हैं.
अब उनके बारे में बात करने से पहले एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को कि ये जो प्रिडिक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट, ये प्रिडिक्शन में क्या हो रहा है, बेसिकली हम एक तरह से फोरकास्टिंग कर रहे हैं। हम एक तरह से ये बता रहे हैं कि चलो इस स्टूडेंट का प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, तो ये एक प्रिडिक्शन है, राइट। ट्रेन टाइम से आएगी या नहीं आएगी, ये एक प्रिडिक्शन है। नेताजी चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये एक प्रिडिक्शन है। मूवी हिट होगी या फ्लॉप होगी, ये एक प्रिडिक्शन है। ये सब प्रिडिक्शन कहलाते हैं क्योंकि ये फ्यूचर एक्टिविटी को रेफर कर रहे हैं, फ्यूचर में जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता है। बट क्योंकि हमने कुछ मैथमेटिक्स यहाँ पे लगा ली है और उससे हमें मैपिंग फंक्शन पता चल गया है, तो अब हमारे लिए फ्यूचर की किसी एक्टिविटी को प्रिडिक्ट करना आसान है, क्योंकि हमने उस प्रॉब्लम को एक मैथमेटिकल रूप दे दिया है, उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दिया है। तो बहुत वाजिब है कि उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम किसी चीज का करेक्ट प्रिडिक्शन कर पाए, राइट। जब गाइस while making a prediction, right, when you perform a prediction, right, जब आप प्रिडिक्शन परफॉर्म करते हो, और प्रिडिक्शन परफॉर्म करने में अगर आप प्रिडिक्शन कर रहे हो किसी नंबर का, किसी वैल्यू का, राइट, जैसे सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी कितनी होगी वो एक नंबर है ना, वो 30,000 होगी, 20,000 होगी, 50,000 होगी, 2 लाख होगी, 5 लाख होगी, कितनी होगी, दैट इज अ नंबर। तो जब आप नंबर प्रिडिक्ट करते हो जैसे सैलरी, या किसी की हाइट प्रिडिक्ट करते हो, तो फिर से वो एक नंबर है कि कितने सेंटीमीटर होगी, या कितने फीट होगी, या कितने इंच होगी, राइट। या किसी का आईक्यू प्रिडिक्ट करते हो, तो आईक्यू भी एक नंबर से डिनोट होता है कि भाई किसका कितना आईक्यू है, राइट। या फिर आप किसी का शुगर लेवल प्रिडिक्ट करते हो बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। तो ये सब चीजों में हम एक नंबर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे हम एक नंबर, एक वैल्यू प्रिडिक्ट करनी होती है, उस एक्टिविटी को बेसिकली हम बोलते हैं रिग्रेशन। क्या कहा जाता है उसको, कि साहब हमें रिग्रेशन परफॉर्म करना है। रिग्रेशन परफॉर्म करने का मतलब यही है कि हमें, राइट, क्या प्रिडिक्ट करना है, एक वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है। वी हैव टू प्रिडिक्ट अ सम वैल्यू, सम नंबर, राइट। दूसरी एक्टिविटी प्रिडिक्शन के अंदर ही, दूसरा जो टाइप है जिसको हम नंबर प्रिडिक्ट नहीं कहते, हम वहां पे किसी कैटेगरी को, राइट, किसी कैटेगरी या क्लास को प्रिडिक्ट करते हैं। क्लास या कैटेगरी का क्या मतलब, जैसे ये प्रिडिक्ट करना कि मूवी हिट होगी या फ्लॉप होगी, तो हिट या फ्लॉप एक क्लास है, एक कैटेगरी है, राइट। या फिर प्रिडिक्ट करना कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी प्लेसमेंट एक्टिविटीज में, तो वो अपने आप में फिर से क्लासिफिकेशन है। नेताजी का चुनाव जीतना या हारना एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि जीत या हार दो कैटेगरीज हैं, उनमें से किसी एक कैटेगरी में उनको मिलेगा, राइट। तो ऐसी चीजें जहां पे हम किसी क्लास या कैटेगरी को, राइट, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जैसे ट्रेन टाइम से आएगी या नहीं आएगी, राइट। तो इस तरीके की जो चीजों का प्रिडिक्शन है बेसिकली कहलाता है क्लासिफिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, वी कॉल इट एज क्लासिफिकेशन। ये देखिए, तो जब भी हम प्रिडिक्शन की बात करेंगे मशीन लर्निंग में, उसको हम दो नजरिए से देख सकते हैं। एक तो जिसमें हमें एक नंबर प्रिडिक्ट करना है, और एक हमें क्लासिफिकेशन जिसमें हमें कैटेगरी प्रिडिक्ट करना है। तो रिग्रेशन हो गया और क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक। और ये कहीं पे भी क्लियरली बोला नहीं जाता है जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। तुमने इंटर्नशिप की है, बहुत सारी सभी लोग कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके आए हैं, और कॉलेज में भी मैं मान रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोग कर रहे होंगे। तो वहां पे कभी भी एक्सप्लिसिटली ये मेंशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नहीं किया जाता है आपको कि आपको इसमें रिग्रेशन करना है या क्लासिफिकेशन परफॉर्म करना है, राइट। ये हमारा डेटा है, ये मेरी प्रॉब्लम है, तो अब आप इस पर रिग्रेशन लगाइए या नहीं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तो डिजायर्ड आउटपुट के बारे में बोला जाता है कि भाई मुझे तो ये चीज चाहिए, ये मेरा डेटा है, अब तुम कैसे करोगे कैसे नहीं ये तुम जानो, ये डेवलपर का काम है, ये जो उस पर काम कर रहा है प्रोजेक्ट को उसका काम है, राइट। और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही ये चीज कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है, और जो हमें ये इंडिकेट करती है कि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम होगी या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। वो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना जरूरी है जब भी आपको मशीन लर्निंग एल्गो के ऊपर कुछ मशीन लर्निंग मॉडल्स के ऊपर या मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। सो गाइस टेल मी, क्या आपको रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन नाम की जो दो डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, जो कि प्रेडिक्शन से रिलेटेड हैं,
क्या ये चीज आपको समझ में आई? उसके बाद गाइस, यू नो, आफ्टर दिस let me, you know, talk about this next part now guys. तो हम अगर हम देखें तो मशीन लर्निंग को हम ब्रॉडली, यू नो, अगर हम देखें गाइस तो मशीन लर्निंग को ब्रॉडली हम दो हिस्सों में बांट पाते हैं. यू नो, वी कैन डिवाइड इनटू टू सब कैटेगरीज. एक हिस्सा कहलाता है जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, राइट, और एक हिस्सा ये है जिसको हम बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. ओके, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको ये रास्ता लेना है या ये रास्ता लेना है. विच वे यू हैव टू गो, इट इज ऑल हिडन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ये प्रॉब्लम से ही पता चलता है, पहले से नहीं पता चलता है कि क्या करना है, राइट. नाउ गाइस, अगर आपके डेटा सेट में, जो प्रॉब्लम के साथ जो आपका डेटा सेट आया है, अगर उस डेटा सेट में एक्स और वाई दोनों हैं, मतलब फीचर भी है और लेबल भी है, ठीक है. नॉर्मल सिनेरियोज में फीचर एक से ज्यादा हो सकते हैं, उसके बारे में बात हम कभी बाद में करेंगे, बट अभी आप अपनी एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ तक ही अपने आप को, यू नो, सोचें कि हमारे डेटा में फीचर भी और लेबल भी है. इसका मतलब कैसा डेटा है? वो लेबल्ड डेटा सेट कहते हैं उसको. तो लेबल्ड डेटा सेट क्या है? मैं कुछ टर्म्स आज आपको बताऊंगा. मुझे नहीं मालूम है कि कितने लोगों को ये चीज पता है या कितनों को नहीं. कम से कम उन लोगों को तो पता है ये चीजें जिन्होंने फॉस्क के अंदर कोई इंटर्नशिप कभी ना कभी की है. दुष्यंत हो गया, अश्विनी हो गया, विशाल हो गया, दिनेश हो गया, राइट, रिया हो गई. तो उसके अलावा यहाँ पे हम ये जो चीज समझ रहे हैं वो है कि लेबल्ड डेटा सेट, मतलब ऐसा डेटा सेट जिसमें हमारे पास फीचर भी है और हमारे पास लेबल भी है, राइट. अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में गाइज हमारे डेटा सेट में सिर्फ फीचर्स होते हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं अनलेबल्ड डेटा. अनलेबल्ड डेटा किस डेटा सेट को कहेंगे? ऐसा डेटा सेट जिसमें सिर्फ फीचर हैं, राइट. फीचर तो है लेकिन लेबल नहीं है. लेबल इज नॉट देयर. यहाँ पे फीचर भी है, यहाँ पे लेबल भी है गाइस. अब क्योंकि हम सुपरवाइज्ड एमएल की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई दोनों हैं, तो हम डेफिनेटली मैपिंग फंक्शन पता कर सकते हैं. अपने मॉडल को ट्रेन करके वी कैन फाइंड आउट द मैपिंग फंक्शन, राइट. नाउ गाइस, सुपरवाइज्ड एमएल के भी अब आगे दो हिस्से हो जाते हैं. एक हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन, और एक हिस्सा जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, राइट. इस रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन को परफॉर्म करने का मतलब यही है कि आपको मैपिंग फंक्शन पता करना है. वो मैपिंग फंक्शन या तो रिग्रेशन परफॉर्म करेगा या क्लासिफिकेशन परफॉर्म करेगा. अब कौन कौन सी एल्गोरिथम ऐसी हो सकती हैं जिनके थ्रू हम रिग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं? तो उन एल्गोरिथम के कुछ नाम यहाँ पे मैं आपको जैसे बताऊं कि साहब, लीनियर रिग्रेशन करके एक एल्गो होती है जिसको यूज करके हम रिग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब किसी नंबर को या किसी वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक. उसके अलावा हमारे पास दूसरी जो एल्गोरिथम यहाँ पे हो सकती है वो डिसीजन ट्री है. उसके अलावा एक और एल्गो का नाम बता रहा हूँ, रैंडम फॉरेस्ट है. ये एल्गोरिथम्स के नाम हैं, इनके अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ हम नाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं. और हो गया SVR, जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर. ओके, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन. सो ये चीजें यहाँ पे हैं. ऐसे ही क्लासिफिकेशन, जिसका क्या मतलब होता है कि किसी कैटेगरी या किसी क्लास को प्रेडिक्ट करना. क्लासिफिकेशन के लिए भी हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन जैसे है, राइट, या हमारे पास SVM है जिसको हम सपोर्ट वेक्टर मशीन कहते हैं, एल्गोरिथम्स के नाम है. SVM है, या फिर हम जो है यहाँ पे KNN जिसको हम लोग कहते हैं, के नियरेस्ट नेबर, राइट, वो है. या फिर हमारे पास एक और एल्गोरिथम जिसको हम बोलते हैं नेवेज है, राइट, वो हो गई. और दूसरी एल्गोरिथम जैसे कि डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है, डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट.
गाइस कंफ्यूज ना हो, ये दोनों एल्गोरिथम यहाँ पे भी मैंने लिखी हैं और उनको मैंने यहाँ पे भी लिखा है, राइट? क्यों? क्योंकि ये एल्गोरिथम ऐसी एल्गोरिथम है जिनके थ्रू हम रिग्रेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं और जिनके थ्रू हम क्लासिफिकेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए दोनों जगह नाम आता है। वो डेटा के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से रिग्रेशन भी परफॉर्म कर सकती है और क्लासिफिकेशन भी परफॉर्म कर सकती है, दोनों केसेस में, राइट? नाउ गाइस, ये उन एल्गोरिथम्स के नाम है। ये वो एल्गोरिथम है जो हमारा लिए क्या काम करती हैं, वो हमारे लिए इस मैपिंग फंक्शन को पता करती हैं। और once mapping function is known to us, obviously we can make a prediction, we can perform prediction activity. Similarly guys, unsupervised machine learning में, क्योंकि अब तुम्हारे पास लेबल नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे पास y नहीं है, अब तुम्हारे पास सिर्फ x ही है, तो गाइस मुझे बताओ, अब x ही तुम्हें दे रखा है, y तुम्हारे पास है नहीं, तो मैपिंग फंक्शन को पता कर सकते हैं या नहीं पता कर सकते हैं? क्या मानते हो तुम? मैथमेटिक्स के हिसाब से हमें सिर्फ x दे रखा है, रिलेशनशिप में 3 चीजें हैं, 2 चीजें दी हुई होती हैं तो तीसरी पता कर सकते हैं, बट अभी सिर्फ एक ही चीज दे रखी है, तो क्या हम मैपिंग फंक्शन को पता कर सकते हैं? बोलो यस और नो में कुछ जवाब दो। नो, राइट? इसका मतलब क्लस्टरिंग के इसका मतलब अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम प्रिडिक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, यहाँ पे कुछ और काम होता है, राइट? और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के भी 2 हिस्से होते हैं गाइस, मतलब 2 सब टाइप जिसको हम कहते हैं। एक सब टाइप कहता है क्लस्टरिंग और एक टाइप कहलाता है एसोसिएशन। क्लस्टरिंग का मतलब होता है गाइस, डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करना बेस्ड ऑन फीचर्स ओनली, सिर्फ फीचर्स को देख तक करके डेटा ग्रुप बना देना। जैसे होता है ना कि कोई सब्जी वाला आपने देखा होगा, राइट? वेजिटेबल शॉप ओनर, वो क्या करता है, जैसे खीरा है फॉर एग्जांपल, हम खीरे का एग्जांपल लें, तो वो जब मंडी जाता है तो वहां से लेट से वो बल्क में खीरे खरीद के लेके आ गया, राइट? और अब वो क्या करेगा, हर एक खीरे को देखेगा और खीरे को देख करके कि उसका साइज कितना है, बड़ा छोटा है, मीडियम है, उसका टेक्सचर कैसा, टेक्सचर मतलब फ्रेशनेस दिख रही है नहीं दिख रही है, एकदम सूखा लग क्या है, टेक्सचर कैसा है उसका, स्किन कलर कैसा है उसका, राइट? तो ऐसी सब चीजों को देखने का मतलब है उनके फीचर्स की जांच पड़ताल की जा रही है कि खीरा के फीचर्स कैसे हैं। और जब भी हम खीरा के फीचर की बात करेंगे तो किसके बारे में बात कर सकते हैं कि साहब साइज क्या है उसका, तो साइज बिकम्स फीचर। उसका कलर कैसा है साहब, पीला तो नहीं हो गया, हरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, टेक्सचर कैसा है, राइट? खुरदरा है या एकदम चिकना, हाथ में लेने पे कैसा फील हो रहा है, ये सब चीजें उस खीरे की प्रॉपर्टीज हैं, उस खीरे के फीचर्स हैं। और बेस्ड ऑन दोज फीचर्स ओनली वो शॉप ओनर क्या करता है, उसने 2-3 अलग अलग कैरेट बना रखे हैं। अच्छी क्वालिटी का खीरा एक तरफ डाल दिया, फिर थोड़ा मीडियम वैसा है वैसा, उसके लेट से 2 या 3 उसने अलग अलग वो बना दिया। वो जो अच्छी क्वालिटी के खीरे होंगे जिनका उसने एक अलग से बास्केट में डाल दिए हैं, उनकी वो प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा रखेगा, दूसरे की ऐसे ऐसे कर, ऐसा पॉसिबल होता है, राइट? सो फ्रूट्स में भी ऐसा आप तुमने देखा ही होगा कि सब ये सेब फलाने रुपए में है, ये सेब इतने में है, ये सेब इतने में है। वो सिर्फ जो जो सेब की प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से तो उसका प्राइस डिसाइड हो रहा है, राइट? और वो देख करके उसको हाथ में लेकर के ये सब चीजें पता चल जाती हैं और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है कि भैया किस किस ग्रुप में जानी चाहिए। तो वो जो ग्रुपिंग है, जो जो हम सेग्रीगेट कर रहे हैं खीरे को या एप्पल को या दूसरी चीजों को, उसी पार्ट को हम क्लस्टरिंग कहते हैं। क्लस्टरिंग का मतलब है सिर्फ प्रॉपर्टीज को देखते हुए, सिर्फ फीचर्स को देखते हुए हम अपने डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, राइट? तो वो क्लस्टरिंग एक्टिविटी है। जैसे बच्चे हैं तो बेस्ड ऑन जेंडर, इस क्लास में जितने भी लोग हैं सिर्फ जेंडर के बेस पे हम ग्रुप बना सकते हैं। जेंडर क्या हो सकता है? जेंडर हो सकता है कि आपके पास जो है मेल या मेल है या फीमेल है, वैसा जेंडर के हिसाब से हम 2 ग्रुप बना सकते हैं, राइट? सो ये चीज यहाँ पे हुई है। और क्लस्टरिंग को परफॉर्म करने के लिए गाइस, क्लस्टरिंग को परफॉर्म करने के लिए
हमारे पास जो सबसे बेस्ट एल्गोरिथम है वो है के मीन्स। दूसरी एल्गोरिथम भी है यहाँ पे, डीबी स्कैन और hierarchical clustering, hierarchical clustering। तो ये एल्गोरिथम्स क्लस्टरिंग के लिए। ऐसे ही एसोसिएशन के लिए एक एल्गो आती है जिसको कहते हैं एप्रियोरी। अब एसोसिएशन का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। एसोसिएशन का मतलब समझाने से पहले मैं इसके बारे में बता दूं एसवीएम, क्योंकि चंद्र प्रकाश ने पूछा कि सर एसवीएम क्या है। एसवीएम है सपोर्ट वेक्टर मशीन, और ये किस काम में आ रही है? क्लासिफिकेशन के लिए काम में आ रही है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ओके, so support vector machine, this is known as क्लासिफिकेशन के लिए काम में आने वाली है। so this is guys, अब मैं आपको now guys let's talk about this association। इसका मतलब क्या होता है एसोसिएशन का? ये हम रोज देखते हैं और रोज हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं ये काम कर रहा है। देखो एसोसिएशन का मतलब क्या है, उस चीज को समझ लीजिए एक बार आप अच्छे से। let's write that on a new one। देखिए यहाँ पे एसोसिएशन का मतलब क्या है समझ लीजिए उसको। आप लोग अमेज़न, फ्लिपकार्ट, राइट, या यूट्यूब या नेटफ्लिक्स, कुछ भी, राइट, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं या शॉपिंग के ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब आप यूज़ करते हो। आपने कभी देखा है, हैव यू एक्सपीरियंस दिस, कि जैसे ही अमेज़न पे आप कुछ खरीदने गए, लेट्स से आपने शर्ट खरीदी, सेलेक्ट कर ली, पेमेंट करने जा रहे हैं, राइट, यहाँ राइट साइड में वो आपको कुछ लिस्ट दिखाता है कि दूसरे लोगों ने ये भी खरीदा, वो भी खरीदा, फलाना टिकट, राइट। किसी ने वॉलेट खरीदा, किसी ने ट्राउजर खरीदा, किसी ने टी शर्ट खरीदी, किसी ने कुछ और किया, किसी ने ऐसे कुछ सजेशंस वो देने लग जाता है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा वो सजेशन किस बात पर डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं कि आपने कौन से आइटम फिलहाल खरीदे हैं। कई बार वो इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि पास्ट में आप क्या खरीदते आ रहे हैं। कई बार वो इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि आप जनरली 100 रुपए की कर रहे हो, या फिर आप 200 रुपए की शॉपिंग कर रहे हो, या 1000 की कर रहे हो, 5000, मतलब आपका पैटर्न खर्चा कितना आप मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, उसके हिसाब से भी रिकमेंडेशंस आने लग जाती हैं, राइट। बहुत सारी। और कई बार वो ये चीज भी देखते हैं कि आपके जैसे लोग जो आपकी एज ग्रुप के हैं, आपके सेम इंटरेस्ट वाले हैं, राइट, या फिर आपके आपके जैसे बिहेवियर के हैं, राइट, वो लोग क्या खरीद रहे हैं उसके हिसाब से भी सजेशंस आने लग जाते हैं, राइट। चाहे वो यूट्यूब की बात कर लो, चाहे फ्लिपकार्ट की, चाहे नेटफ्लिक्स की, किसी भी, राइट। सो इस तरीके की जो चीज जो यहाँ पे ये जो लिस्ट बन के आई है, इसको हम लोग कहते हैं रिकमेंडेशन लिस्ट। क्या बोलते हैं इसको गाइस? रिकमेंडेशन लिस्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रिकमेंडेशन लिस्ट, ओके। एंड इस रिकमेंडेशन लिस्ट को बनाने के लिए ऑब्वियसली मशीन लर्निंग का या एआई का यूज हो रहा है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल यूज होता है या जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको हम लोग एसोसिएशन कहते हैं। वी कॉल इट एज एसोसिएशन। और जो एल्गो यहाँ पे यूज आ रही है वो है एप्रियोरी। बट एप्रियोरी एक बेसिक लेवल तक ही काम करती है, उसके बाद फिर आपको कुछ एडवांस चीज़ों को भी पकड़ना पड़ता है कि भाई क्या इसमें कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो उस चीज़ के लिए एडिशनल हमारे पास लाइब्रेरीज या एडिशनल टूल्स, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनके थ्रू आप एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन इंजन बना सको। जैसे अभी तक का ये माना जाता है कि द बेस्ट रिकमेंडेशन इंजन इज फ्रॉम नेटफ्लिक्स गाइस, बेस्ट रिकमेंडेशन इंजन इज फ्रॉम नेटफ्लिक्स। सो जहाँ पे वो जैसा आप मूवी देख रहे हो या फिर आपका हिस्ट्री है, क्या लाइक किया, क्या डिसलाइक किया, उसके हिसाब से दे गिव यू द रिकमेंडेशंस, राइट। बट आई थिंक एवरी कंपनी इज वर्किंग इन दिस डोमेन, एंड यहाँ पे कुछ डीप लर्निंग के फीचर्स भी काम में आते हैं, राइट। और
बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मुझे जो चीज़ आपको बतानी है वो ये है, मुझे ध्यान है हमने कोई क्लाइंट के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था रिकमेंडेशन इंजन के लिहाज से। उस टीम में दीपेश और उत्कर्ष और ये सब लोग काम कर रहे थे। सो वहाँ पे उन्होंने जो पाइथन की जो लाइब्रेरी यूज़ की थी, उस लाइब्रेरी का नाम था लाइट एफएम। ओके, एक और लाइब्रेरी आती है सरप्राइज के नाम से, ये पाइथन की लाइब्रेरीज हैं और जो किस काम में यूज की जा सकती हैं गाइस, रिकमेंडेशन इंजन बनाने के लिए, राइट। और बेसिकली एक एजुकेशन वेबसाइट पर भी रिकमेंडेशन का काम हो सकता है कि कोई ऑनलाइन कोर्सेज की कोई वेबसाइट है, उसमें बच्चे ने क्या देखा क्या नहीं देखा, कैसी चीज़ों को वो लाइक कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या उसका बैकग्राउंड है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करके उसके लिए रिकमेंडेशन किया जा सकता है चीज़ों का, राइट। सो दैट इज देयर नाउ। हमने फिर फाइनली लाइट एफएम को उसमें यूज़ किया था और क्लाइंट को डिलीवरी दी थी। सो एक मिनट गाइस, नाउ ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर आप लोगों को मैं मशीन लर्निंग से रिलेटेड उस पर बता रहा हूँ। नाउ गाइस, इतनी कहानी समझाने के बाद मैंने आपको एक पूरी एक स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश की है। जो उससे क्या फ़ायदा मैं लेना चाहता हूँ, उसका फ़ायदा मुझे ये लेना है कि आप लोग अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ों को रेफर कर रहे हैं, अलग अलग पढ़ रहे हैं, अलग अलग आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अलग अलग आपकी लर्निंग है, राइट। मैं इस चीज़ को समझा करके आप सभी लोगों को एक सेम पेज पर लेके आना चाहता हूँ, जिससे कि मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो कि आपको क्या चीज़ की समझ है और क्या चीज़ की समझ नहीं है, राइट। तो अब मुझे एक फीडबैक सब लोग चैट विंडो से, यस नो से नहीं, चैट विंडो से दीजिए कि जो चीज़ मैंने अभी फिलहाल आपको बताई है, राइट। और फिर मैं थोड़ा सा डीप लर्निंग के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि वो भी थोड़ा सा ज़रूरी है, जिससे कि हम आगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे जब जाएं तो हमें थोड़ा सा चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग रहे। आप नाउ गाइस, आफ्टर दिस अंडरस्टैंडिंग, राइट, आफ्टर दिस अंडरस्टैंडिंग, लेट्स हम एक थोड़ा सा डीप लर्निंग के सिनेरियोज के बारे में भी बात कर लेते हैं, और फिर हम 5-10 मिनट का एक ब्रेक ले लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अपना जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग वाली जो कहानी है उसकी तरफ चलेंगे, राइट। सो नाउ लेट्स talk about some new things around deep learning, okay? तो वैसे तो अब हम सब जानते हैं कि जो डीप लर्निंग की जब जब भी हम बात करते हैं तो मोस्टली वो ऐसी चीज़ों से जुड़ी हुई है जहाँ पे हमारा डेटा एक तरह से वीडियो के फॉर्मेट में है, इमेज के फॉर्मेट में है, ऑडियो के फॉर्मेट में है, या टेक्स्ट, लार्ज टेक्स्ट डेटा है, राइट। वो सो ओके, थैंक यू अंकित। सो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी है कि डीप लर्निंग किस तरीके के माहौल में ज़्यादा सूटेबल रहता है। नाउ ये समझने के बाद एक चीज़ जो अब हमें और समझनी चाहिए कि हम डीप लर्निंग में भी, राइट, डीप लर्निंग में भी हम दो कैटेगरीज को देखते हैं। वी सी टू कैटेगरीज। सो वन इज नोन एज सुपरवाइज्ड डीप लर्निंग, guys, one is known as the supervised deep learning, and the other is also known as unsupervised deep learning. This is there. And now when I say supervised deep learning, अब आप सब supervised का मतलब तो जानते हैं कि supervised का मतलब है कि हमारे पास डेटा में फीचर भी है और लेबल भी है, और अनसुपरवाइज्ड मतलब सिर्फ फीचर्स की बात हो रही है, ओनली फीचर्स, राइट, ओनली फीचर्स एंड नो लेबल, दैट इज देयर। नाउ सुपरवाइज डीप लर्निंग और पर्टिकुलर इंटरेस्ट का हमारा एरिया है, और आई एम होपिंग कि आप लोगों के कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी रहे होंगे, ठीक है, या आने वाले होंगे। सो गाइस, सुपरवाइज डीप लर्निंग में हमारे पास प्राइमरली तीन मॉडल हैं या तीन आर्किटेक्चर्स हैं। एक मॉडल कहलाता है ANN, विच इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्या कहते हैं उसको? आर्टिफिशियल
न्यूरल नेटवर्क। ठीक, दूसरा जो आर्किटेक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं CNN, जिसका नाम क्या है, कॉन्वोल्यूशनल, ओके, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, वो चीज हमारे पास है। और तीसरा आर्किटेक्चर जो होता है वो कहलाता है RNN, विच इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, दिस इज देयर। नाउ ANN, राइट, ANN जो है वो डीप लर्निंग की बैकबोन है। बैकबोन का मतलब न्यूरल नेटवर्क जो हम बार बार बोलते आए हैं या आगे भी बोलते रहेंगे, या लिटरेचर में भी जो लिखा रहता है, न्यूरल नेटवर्क का मतलब दिस ANN है वहां पे, राइट। और ANN को हम मैं कैसे कंपेयर करूं अपने पुराने मशीन लर्निंग जो मेरी समझ बनी है, मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास जो सुपरवाइज्ड ML होती है, राइट, जो सुपरवाइज्ड ML है उसमें हमारे पास दो चीजें हैं, रिग्रेशन, राइट, और क्लासिफिकेशन। और उसमें आपने क्या समझा कि सब रिग्रेशन में भी हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं, और क्लासिफिकेशन में भी हमारे पास काफी सारी एल्गोरिथम हैं जिनके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। गाइस, जब हम ANN को यूज करते हैं, राइट, जब हम ANN को यूज करते हैं तो हमें इनकी किन्हीं भी एल्गोरिथम्स की जरूरत नहीं है, राइट। हम सिर्फ और सिर्फ ANN आर्किटेक्चर को, जो कि डीप लर्निंग का आर्किटेक्चर है, उसको यूज करते हुए ही रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों ही हम ANN से परफॉर्म कर सकते हैं। और ये सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा, रिसर्च एरिया आपका जो है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको रिग्रेशन परफॉर्म करना है या क्लासिफिकेशन करना, कुछ भी हो, राइट, आप उसको ANN के थ्रू अचीव कर सकते हैं, ANN के थ्रू उसको अचीव किया जा सकता है, पहली चीज तो, ठीक। दूसरा गाइस, जो CNN है, राइट, जिसको हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कह रहे हैं, बेसिकली CNN किसको एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, एक सब डोमेन जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर विजन। क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर विजन। ये कंप्यूटर विजन के लिए है CNN। और कंप्यूटर विजन का मतलब क्या है कि इमेज में ये आइडेंटिफाई करना कि एप्पल है या ऑरेंज है, या कैट है या डॉग है, या अंकित झाझड़िया है या अश्विनी है या दुष्यंत है, राइट, या फिर रिया है या कोई और भी स्टूडेंट है, राइट। तो ये सब हम जहाँ पे हम इमेज से देख करके या वीडियो से देख करके ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं यूजिंग डीप लर्निंग, तो उस चीज़ को हम कंप्यूटर विजन कहते हैं। ये ड्राइवरलेस कार में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। ड्राइवरलेस कार में बहुत सारे कैमरेज लगे हुए रहते हैं। आपने ड्राइवरलेस कार्स के बारे में सुना होगा, टेस्ला एक कंपनी है, या गूगल है, या दूसरी और कंपनीज भी अभी काफ़ी उस तरफ काम कर रही हैं, राइट। या आपने कुछ रोबोट्स के बारे में सुना होगा, जो वो रेस्टोरेंट्स में कुछ डिलीवरीज वगैरह करते हैं, राइट। तो उनका काम है कि कैमरा से फोटो लेकर के देखना कि आगे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है जिससे वो टकरा सकते हैं, रास्ता साफ है या नहीं है, कुछ और चीज़ तो नहीं है। कार के मामले में अगर देखें तो उसको मालूम होना चाहिए कि साइन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ, उसको मालूम होना चाहिए कि या रास्ते में कोई पैदल यात्री तो नहीं आ गया है, या कोई आगे ब्रेकर तो नहीं है, या आगे कोई रेड लाइट तो नहीं है, उसको क्रॉस करना है या रुकना है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट, ये सब चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर विजन का हिस्सा हैं, राइट। और कंप्यूटर विजन को अचीव करने के लिए जो आर्किटेक्चर हम डीप लर्निंग में यूज कर रहे हैं वो CNN है, दैट इज कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। और जैसे कि हम बात करें कि सब हमें इमेज दी जाए और इमेज में हम पता कर लें कि उसमें कैट की इमेज है या वो डॉग की इमेज है, तो CNN का काम तुम लोगों को समझना चाहिए। CNN का काम ये है कि CNN को हम इमेज देंगे, सो वी विल गिव द इमेज गाइस। ये CNN उसमें से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, फीचर्स, एक्सट्रैक्शन। फीचर को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है इस डेटा में से काम की चीज निकाल लेना। तो एक फिर से फीचर बन गया, और अब फीचर बन गया है तो इन्हीं फीचर को आगे हम फिर से ANN में देते हैं, और इन फीचर्स के बेस पर वो प्रिडिक्ट करेगा कि वो कैट है या डॉग है। समझ में आइए प्रोसेस क्या है गाइस। तो सिर्फ CNN का मतलब, CNN का काम सिर्फ और सिर्फ फीचर्स को इमेज में से एक्सट्रैक्ट करना है, वीडियो में से एक्सट्रैक्ट करना है, अगर ये वीडियो वाली प्रॉब्लम है तो,
फीचर एक्सट्रैक्शन करने के बाद आपको फिर से ANN की जरूरत पड़ने ही वाली है, बिकॉज रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन को फाइनली कौन करेगा? ANN ही करेगा फाइनल, राइट? तो CNN अपना काम कर चुका है और फाइनली आपको प्रेडिक्शन कौन देगा? फिर से ANN ही देगा। इसीलिए हम ANN को एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बार बार कहते आ रहे हैं, वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे फेसबुक में आप कोई फोटो अपलोड करते हो या किसी दूसरी साइट पे अपलोड करते हो, तो तुमने देखा होगा वो अपने आप ही प्रॉम्प्ट करने लग जाता है आपको कि भाई, डू यू वांट टू टैग योर फ्रेंड अंकित, डू यू वांट टू टैग योर फ्रेंड अभिषेक, डू यू वांट टू टैग योर फ्रेंड लोकेश, राइट? तो वो अपने आप ही आपने जस्ट फोटो अपलोड की है, राइट, बट उसने खुद से डिटेक्ट कर लिया कि उस फोटो में कौन कौन है। तो ये किसका एग्जाम्पल है गाइस? क्या ये एग्जाम्पल कंप्यूटर विजन का है? क्या फेसबुक ने कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम लाइक CNN यूज किया है जिससे वो डिसाइड कर पा रही है कि फोटो में कौन कौन है? क्या मानते हो आप लोग, ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है वहां पे? यस, ये चीज हो रही है, राइट? तो ये चीज हो गई। दूसरा जो RNN है, जिसको हम लोग रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कह रहे हैं, यू नो, वी कॉल इट एज अ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। बेसिकली RNN का जो यूज होता है, वो यूज होता है टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए, यू नो। एक कॉन्सेप्ट है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस किस तरीके की प्रॉब्लम्स को कहते हैं? इस तरीके की प्रॉब्लम्स को टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं जहां पे लेट्स से तुम्हारे पास 5 साल 10 साल पुराना कुछ डेटा है, 5 साल का डेटा है, 10 साल का डेटा है कि सब फलानी कंपनी के स्टॉक, यू नो, कैसे रहे, तो उनकी पूरी डिटेल, यू नो, पर डे कितने पे ओपन हुआ, कितने पे क्लोज हुआ, या रेनफॉल कि पिछले 10 साल में राजस्थान में रेनफॉल का क्या पैटर्न रहा है, वो पूरा डेटा, या पिछले 100 साल में अर्थक्वेक की क्या इंटेंसिटी रही है, कब आए हैं, वो डेटा, राइट? या कुछ इस तरीके की चीजें, या फसल का जो प्रोडक्शन होता है, क्रॉप यील्ड जिसको कहते हैं, वो उस पुराने डेटा को समझते हुए, उसके पैटर्न को समझते हुए आगे की फोरकास्टिंग करना कि साहब नेक्स्ट यू नो ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा, या फिर रेनफॉल कितना होगा, या यू नो उस पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर वीक या पर्टिकुलर मंथ में शेयर किसी पर्टिकुलर कंपनी के कैसा बिहेव करेंगे। इन सब चीज़ों की अगर आपको सही तरीके से एक तरह से प्रेडिक्शन करनी है, तो इन सब चीज़ों को एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। व्हाई वी आर कॉलिंग इट टाइम सीरीज? बिकॉज हम पुराने डेटा को ऐसे अटेंड कर रहे हैं, जैसे कि 2015 का डेटा ये, 2015 में भी जनवरी का ये, फरवरी का ये, यू नो, और किसी पर्टिकुलर मंथ में भी, यू नो, इस वीक का ये, उस वीक का ये, फलाना ये, डिक्कड़ ये, इस तरीके की चीज़ें हैं, वो टाइम सीरीज एनालिसिस कहलाती है। और उस टाइम सीरीज एनालिसिस में हम RNN का यूज अच्छे से कर पाते हैं, और RNN को यूज करते हुए हम जो फोरकास्टिंग करते हैं वो काफ़ी सटीक या काफ़ी सही जाती है। तो RNN का यूज वहाँ पे आता है। बट फिर भी आप ध्यान करिए, RNN ने तो टाइम सीरीज डेटा में से कुछ चीज़ों को निकाला है, कुछ चीज़ की समझ डेवलप की है, और फाइनली आपको प्रोडिक्शन करने के लिए तो फिर से किसकी जरूरत पड़ेगी? इसमें ANN की ही जरूरत पड़ने वाली है, राइट? तो जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि ANN इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। चाहे आप CNN के डोमेन में काम करो, चाहे आप RNN के डोमेन में काम करो, आपकी जो यहाँ पे जो जरूरत है वो आपको वहाँ पे भी पड़ेगी, CNN में भी पड़ेगी, और आपको क्यों ANN एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे रिग्रेशन भी हो रहा है, क्लासिफिकेशन, अल्टीमेटली हर प्रॉब्लम किसी ना किसी रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन में तो कन्वर्ट होगी होगी, एज लॉन्ग एज वो एक सुपरवाइज डीप लर्निंग के अंडर आती है। वैसे ही अनसुपरवाइज डीप लर्निंग में भी हम क्या कर सकते हैं? हम अनसुपरवाइज्ड डीप लर्निंग में भी क्लस्टरिंग परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके लिए आपको के मीन्स की या DB स्कैन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक यू नो आर्किटेक्चर होता है जिसको कहते हैं SOM, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप। क्या बोलते हैं उसको? वी कॉल इट इज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, ठीक है? वो चीज यहाँ पे है, और उन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप करके यू नो उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हम जो है परफॉर्म कर सकते हैं अपने डेटा के ऊपर क्लस्टरिंग को, दैट इज देयर। सो ये चीज यहाँ पे हुई है गाइस, और एक मिनट। सो
ऐसे ही यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे ऑटो एनकोडर्स वगैरह। एक ऑटो एनकोडर एक प्रॉपर्टी होती है डीप लर्निंग में गाइस, जिसका हम सबसे अच्छा इस्तेमाल या तो रिकमेंडेशन इंजन को बनाने में कर सकते हैं, या फिर तुमने कई बार देखा होगा ब्लैक एंड वाइट ब्लैक एंड वाइट इमेजेस को कलर में कन्वर्ट करना है, राइट? वो ऑटो एनकोडर का कमाल होता है। या ब्लैक एंड वाइट वीडियो को कलर में कन्वर्ट करना है, राइट? वो ऑटो ऑटो एनकोडर की प्रॉपर्टी है, उसको यूज किया जाता है वहाँ पे। तो इस तरीके का ओवरऑल मैंने आपको एक डीप लर्निंग का आइडिया भी दिया है। मैं इंटरनल किसी में नहीं गया हूँ, मैंने आपको अभी तक बहुत सारी चीज़ें इसमें हिडन है, पर मेरा मानना है वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। सिर्फ यूज़ मतलब अप्लाइड साइड की अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई हाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, और मैं कहाँ पे अपने आप को समझ सकता हूँ कि यार बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम वेयर आई शुड फोकस, राइट? कि मुझे CNN पे जाना है, या मुझे RNN पे जाना है, या मुझे ANN पे जाना है, या फिर मुझे SOM पे जाना है, या मुझे ऑटो एनकोडर पे जाना है, तो वो चीज़ यहाँ पे मैंने आपको एक तरह से कोशिश की है ये बताने के लिए कि कैसे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। सो गाइज, दिस इज अबाउट डीप लर्निंग। गाइज अब हम अपने गियर्स को थोड़ा सा स्विच करेंगे, राइट? अभी तक हम पुरानी चीज़ों में ही घूम रहे थे, राइट? जो अभी कुछ तो जानी पहचानी थी और कुछ के बारे में नहीं पता था, तो थोड़ा सा उनका अब हमें आइडिया लग गया है। Now we are making a shift to another world, right? And what is that shift? Let's understand that part, guys. Sometimes, right, जो एक तरह से more close to a real life scenario की बात है, right? Now we are talking about some real life scenarios. What are those real life scenarios? Let's understand them. For example, you want to design a control system, right? Control system for a flight और हेलीकॉप्टर और कुछ इस तरीके की चीज़ें, कि आपको एक कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करना है जो ऑटोमेटेड वे में एक इस तरीके का इंटेलिजेंट प्रोग्राम है जो खुद डिसीजन ले सके, राइट? बेस्ड ऑन सो मैनी पैरामीटर्स, राइट? उसके हिसाब से वो फ्लाइट को मैनेज कर सके, हेलीकॉप्टर की राइड को मैनेज कर सके। इस तरीके का कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करना है, ठीक है? या फिर आपको कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करना है टू ड्राइव अ कार, राइट? कंट्रोल सिस्टम टू ड्राइव अ कार, राइट? ऑल ऑफ दीज आर रियल लाइफ सिनेरियोज, राइट? या फिर आपको फॉर एग्जाम्पल क्या करना चाहिए, व्हाट कैन बी द अनदर एग्जाम्पल अराउंड दिस गेम, राइट? गेम से रिलेटेड कि यू वांट टू डिजाइन जिसमें आपका प्रोग्राम इतना इंटेलिजेंट है कि वो किसी प्लेयर के साथ गेम खेल सके, राइट? सो गेम कैन बी देयर, राइट? सो यू वांट टू डिजाइन ए AI गेम जो क्या कर सके, उसके साथ कोई भी यूजर खेल सकता है, चाहे वो चेस का गेम है, चाहे कुछ और गेम है, राइट? काइंड ऑफ दैट, राइट? सो ये कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज हैं जहाँ पे वी नीड इंटेलिजेंस, जहाँ पे हमें इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। और अब पॉइंट ये आता है कि हाउ वी कैन ब्रिंग अ इंटेलिजेंसिया, हम किस तरीके से अपने सिस्टम को इतना इंटेलिजेंस बना सकते हैं। क्या हम एक कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं कार के लिए जो क्या कर सके, जो कि खुद से ही सारी चीज़ों को मैनेज कर ले, ड्राइव कर ले, चाहे भीड़ हो, चाहे ब्रेकर हो, चाहे रेड लाइट हो, चाहे ग्रीन लाइट हो, चाहे कुछ और हो, ये हो, वो जितने भी तमाम सैकड़ों सिनेरियोज हो सकते हैं, उन सभी सिनेरियोज में वो एक अच्छे से काम कर सके, राइट? अब क्या प्रॉब्लम क्या है उस चीज़ को आप समझिए। इस तरीके के सिस्टम्स को डिज़ाइन करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, the prima facie issue with all of these systems is that you do not have the data, right? तुम्हारे पास डेटा नहीं है। क्या डेटा का मतलब एक ऐसा डेटा नहीं है जिससे तुम अपने मॉडल को ट्रेन कर सको और मॉडल उस चीज को समझ सके कि किस सिनेरियो में कैसा डिसीजन लेना है। वो हमारे पास डेटा अभी तक नहीं है, राइट? और
ज्यादातर केसेस में जैसे कोई पायलट है, वो फ्लाइट को उड़ाना जो सीखेगा, वो शुरुआत में उसकी ट्रेनिंग होती है, धीरे धीरे डेली वो कुछ ना कुछ नया सीखता है और कुछ गलतियां करता है, फिर करेक्ट करता है। तो हिट एंड ट्रायल बेसिस है। ऐसे ही आप गाड़ी चलाना सीखते हो, वो भी एक तरह से हिट एंड ट्रायल है। कई बार आपने देखा होगा गाड़ी सीखते समय एक्सीडेंट भी हो जाता है, कुछ गलत एक्शन भी हो जाता है, दबाना होता है एक्सीलेटर, दबाना होता है ब्रेक, दब गया एक्सीलेटर, ऐसे बहुत सारे केसेस है ना। सो ये और एंड देन यू बेस्ड ऑन द हिट एंड ट्रायल, फिर आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसके लिए क्या होता है, ट्रेन होता जाता है कि यार ये काम मैंने सही किया था, ये काम गलत किया था, ये नहीं करना है, राइट। सो बेसिकली ये जितने भी लर्निंग्स यहाँ पे होंगी, उसमें हमारे पास कोई पास्ट डेटा नहीं है, पास्ट डेटा इज नॉट विद अस, एंड ऑल ऑफ दीज सिस्टम्स विल बिकम इंटेलिजेंट बेस्ड ऑन द हिट एंड ट्रायल ओनली, right? They become intelligent, and जैसे जैसे टाइम पास होता रहा, they gather the intelligence here, वो ज्यादा मेच्योर होते जाते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंस होते जाते हैं, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, वो एक एनवायरनमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जितने भी कंट्रोल सिस्टम्स हैं, इनको हम बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग में कहते हैं एजेंट। क्या बोला जाता है इनको? वी कॉल देम एजेंट। तो एजेंट क्या है? द इंटेलिजेंट प्रोग्राम, राइट। और वो किसके साथ काम कर रहे हैं? दे आर वर्किंग विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? फ्लाइट के लिए एनवायरनमेंट क्या है कि सब ऊपर आसमान में उड़ रही है, राइट, कुछ वेदर है, कुछ उसको मैनेज करना है, कुछ कंट्रोल सिस्टम्स लगे हुए हैं, कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं, कुछ ये है, कुछ वो है, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। गाड़ी के लिए जो सड़क पे दौड़ रही है, उसके लिए एनवायरनमेंट कुछ अलग टाइप का है, भीड़ है, ब्रेकर है, सड़क है, साइन बोर्ड है, ये लाइट है, वो लाइट है, फलाना है, राइट। सो ये सारी चीजें, गेम के लिए एक अलग एनवायरनमेंट है। तो बेसिकली ये जितने भी इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं, जिनको हमें बेसिकली इंटेलिजेंट बनाना है, अभी तक बने नहीं है, बनाना है जिससे कि वो अपना काम सही तरीके से कर पाए, राइट। सो उनको हम एजेंट कहते हैं। और एजेंट बेसिकली किसके साथ काम कर रहा है? वो एनवायरनमेंट, जो सिनेरियोज जहाँ पूरे बन रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट के साथ काम करता है, और एनवायरनमेंट ही उसको ये सीख देता है, ये रीइंफोर्समेंट देता है कि वो काम उसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से जब वो कोई एक्शन लेता है, जब एजेंट कोई एक्शन ले रहा है, तो एनवायरनमेंट उसको उसका एक रिवॉर्ड देता है। और वो रिवॉर्ड क्या है? वो रिवॉर्ड पॉजिटिव भी हो सकता है और वो रिवॉर्ड नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव रिवॉर्ड कब होगा? जब उसने एक अनडिजायर्ड एक्शन लिया है, राइट। और नेगेटिव रिवॉर्ड देने का मतलब यही है, सिस्टम को हम ये फीडबैक दे रहे हैं कि यार ये काम मत कर, ये काम सही नहीं है, राइट। दिस इज नॉट द गुड वे टू अचीव योर टारगेट, टू अचीव योर गोल। अगर आपको सही गोल अचीव करना है, सही टारगेट तक आपको पहुंचना है, डेस्टिनेशन पर बिना किसी झंझट के, बिना एक्सीडेंट के, बिना किसी को यू नो इशू में डाले हुए, अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है यूजिंग ड्राइवरलेस कार, राइट, मतलब वो कंट्रोल सिस्टम जो कार को चला रहा है, तो वो फीडबैक एनवायरनमेंट से ले रहा है। और फीडबैक पॉजिटिव हो सकता है, फीडबैक नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव फीडबैक एक तरह से पनिशमेंट की तरह काम करता है एजेंट के लिए, जिससे उसको ये सीख मिलती है कि उसको वो काम नहीं करना है और उसको अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है उस एक्शन के रिगार्ड में। और पॉजिटिव फीडबैक या रिवॉर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, वो किस सेंस में काम कर रहा है कि हाँ यार, वी एनकरेज यू टू डू दिस, राइट, वी एनकरेज यू टू डू दिस, राइट। तो इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन के आ गया, जिसको हम अगर मैं इसको थोड़ा सा वन लाइनर या टू लाइनर आपके लिए पढ़ूं, राइट, जो मेरे पास टेक्स्ट है, मतलब वो थोड़ा बड़ा है तो मुझे लिखना पड़ा उसको बोलने के लिए आपको। क्या है उसको समझ लीजिए। reinforcement learning is an approach, क्या है, एक तरीका है, through which intelligent programs known as agents, right, उनको हम लोग क्या कह रहे हैं? एजेंट कह रहे हैं। they work in a environment, right, they work in a environment to constantly adapt and learn। और उस environment के साथ काम करते हुए क्या कर रहे हैं? लगातार सीखते हुए जा रहे हैं और अपने आप को उस माहौल के अनुसार, उस माहौल के लिए तैयार करते जा रहे हैं। जिस माहौल में उसको काम किया कर रहा है, उस माहौल के लिए उसको तैयार कर रहे हैं, राइट। सो इट इज कॉन्स्टेंटली अडेप्टिंग एंड लर्निंग बेस्ड ऑन द गिवन पॉइंट्स। तो ये गिवन पॉइंट्स क्या है? वो फीडबैक
वो रीइंफोर्समेंट है। और वो फीडबैक क्या हो सकता है? द फीडबैक माइट बी पॉजिटिव, जिसको हम आगे से रिवॉर्ड कहेंगे। इट कैन बी नेगेटिव, जिसको हम आगे से पनिशमेंट कहेंगे, राइट? एंड कंसीडरिंग द एजेंट एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन, राइट? एजेंट और एनवायरमेंट का जो इंटरेक्शन हो रहा है, वी देन डिटरमाइन विच एक्शन टू टेक। और फिर हम क्या डिसीजन ले रहे हैं कि यार कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है, बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड। और उसके हिसाब से इन चीजों को फॉलो करते हुए हमें फाइनली एक गोल पर पहुंचना है, ठीक है? तो अल्टीमेटली जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है वो किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज entirely based on rewards and punishment, right? It's based on rewards and punishment, and we have to develop such a a method or such a system जिसमें क्या रहे कि वो रिवॉर्ड्स को तो मैक्सिमाइज करता हो और पनिशमेंट को मिनिमाइज करता चला जाए। जैसे जैसे आगे वो सीखता जाए वैसे वैसे क्या होता जाए, रिवॉर्ड्स तो बढ़ते जाएंगे, तभी तो वो इंटेलिजेंट बन रहा है, अदरवाइज तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा अपने काम में, राइट? और पनिशमेंट्स उसके कम होते जाएं। ये एक पूरा जो सिस्टम है जिसमें हम एजेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम फीडबैक की बात कर रहे हैं, जिसको हम रिवॉर्ड या पनिशमेंट की तौर पर देख रहे हैं, जिसमें कोई एक्शन लिया जा रहा है और उसके बेस पर उसको फीडबैक मिल रहा है, ये एक पूरा का पूरा अपने आप में एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग अप्रोच को बताता है। सो गाइज, अब मुझे फीडबैक दीजिए कि क्या कुछ इनिशियल आपको एक इनपुट मिलना स्टार्ट हुआ कि व्हाट द रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज? बताएं मुझे। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है बेसिकली, ये बहुत ही एक तरह से जिसको हम लोग कहेंगे ना, बहुत बहुत ज़्यादा रियल लाइफ सिनेरियोज की जितनी भी जब बात होगी वहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग की चर्चा ज़रूर होनी है, उसकी बात ज़रूर होगी, ठीक है? नाउ गाइस, कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान देने की ज़रूरत है जब भी हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में बात करेंगे। और उस जब भी व्हेनेवर वी नीड टू टॉक अबाउट रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कुछ चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। वो क्या है, उनको हम थोड़ा सा एक एक पॉइंट से समझ लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम नाउ। पहली चीज़ तो ये है गाइस, कि let's talk about some important points around RL, right? So let's say important क्या कहना चाहिए, points about reinforcement. So when I say RL, guys, consider it as reinforcement learning. So guys, पहली चीज तो जो हमें समझने की है कि this is different from a normal a machine learning. And why it is different from normal machine learning? Because in case of RL, right, we do not look at ट्रेनिंग डेटा। यहाँ पर ट्रेनिंग डेटा का तो काम ही नहीं है ना। सो ट्रेनिंग डेटा सेट नाम की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो हिट एंड ट्रायल के बेस पर लर्निंग हो रही है, ना कि किसी ट्रेनिंग डेटा सेट की। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मशीन लर्निंग, ठीक है? नाउ दूसरा, यहाँ पे जो लर्निंग आ रही है वो बेसिकली एनवायरनमेंट के साथ आ रही है। तो यहाँ पे हम डेटा के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, वी आर इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। सो इंटरेक्शन, let me write it guys, so interaction happens with environment, right? With env means environment, not data. So that is the second important point with regard to RL, guys. Okay, now whenever our agent, right, is going to take a action, so he will get a a reward or punishment, right? He will get a feedback from environment, right? So so rewards in क्या कहना चाहिए, in RL, right, are obtained from the environment, from the environment। यहाँ पे एक तरीके से ये चीज़ है। और अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे लिखें, मतलब थोड़ा सा समझ लें, तो क्या हो गया यहाँ पे
ये तो आपका एजेंट हो गया, रोबोट हो सकता है, कंट्रोल सिस्टम हो सकता है, और ये आपका एनवायरनमेंट हो गया, दिस इज योर एनवायरनमेंट, राइट। और आप क्या कर रहे हो, एक एजेंट एक एक्शन ले रहा है, तो जब वो एक्शन लेता है गाइज, यू नो व्हेन इट टेक्स सम एक्शन, राइट, तो क्या होता है, उसकी स्टेट चेंज होती है। स्टेट का मतलब कि अभी फिलहाल उसकी क्या कंडीशन है और फिर यू नो क्या कंडीशन हो गई। सो अब हम यहाँ पे क्या चल रहे हैं कि वी आर गोइंग फ्रॉम स्टेट S, right? From state S, what we are taking, guys? We are taking a action. So take action, let's say A. So we are in the state A, S, and what we are doing, guys? We are taking a action A. मतलब कुछ काम कर रहे हैं, right? And now based on that action and state, guys, you know what we get? We get a reward, right? So get reward R, let's say, you know, we denote it R. Or along with this, guys, what will happen? We move to a new state, let's say that is S test. तो देखो क्या क्या कहानी होगी इसमें, कि हमारा एजेंट है जो कि कॉन्स्टेंटली इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट से ही उसको लर्निंग करनी है, और जो लर्निंग का जो तरीका है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कि वो तरीके में हमने क्या डाल दिया कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी एक्शन, right, corresponding to every action that agent takes, gets a feedback from the environment, right, and it feedback can be a you know a positive, can be a negative, right. So reward जिसको हम लोग कह रहे हैं और punishment जिसको हम लोग कह रहे हैं, right. और उसमें क्या हो रहा है कि whenever agent is taking a action, right, तो उसका state भी change हो रहा है from state S to a new state, जिसको हमने किस में represent किया है, S dash में हमने उसको किया है, ठीक है। तो पहले स्टेट एस थी और अब क्या हो गई है, एस डैश हो गई है, और क्या एक्शन लिया गया है, ए लिया गया है, और उसको क्या रिवॉर्ड मिला है, आर मिला है, और किसको मिला है, एजेंट को मिला है, किससे मिला है, एनवायरनमेंट से मिला है। सो दिस इज हाउ इंटरेक्शन हैपेंस बिटवीन एजेंट एंड एनवायरनमेंट। तो ये चीज तो हमारी थोड़े थोड़े कुछ टर्म्स को मैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके ब्रेन में फिट होते चले जाएं, so that later on once we are on some practical aspects of those problem statements, we don't find issues regarding the basic understandings. So guys, यहाँ तक समझ में आया? सपना, are you getting this? Please बताएं मुझे, समझ में आया यहाँ तक? कैसा है? मेरे हिसाब से तो अभी इतना इशू अभी फिलहाल होना नहीं चाहिए, right? Okay, सपना is saying yes sir, good. Now अगर हम एक पूरे RL प्रोसेस को डिपिक्ट करें यहाँ पे, if we say RL process, so RL means reinforcement learning, guys. Okay, when we talk about RL process, what is there? So basically वो है तो मशीन लर्निंग का ही एक्सटेंशन है, तो कहानी तो वहीं से स्टार्ट हुई थी सारी, राइट, कि हम अपने सिस्टम को कैसे इंटेलिजेंट बनाएं, सो चीज़ें वहीं से हैं, राइट, एमएल। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, हम पहुंचे एक तरह से रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, तो इसको बोलेंगे हम RL बॉक्स। मतलब वो बॉक्स क्या है, जैसे होता है ना घर में कोई बॉक्स होता है, उसमें सारे औजार या हथियार होते हैं, कुछ चीज़ फिक्स करनी है, प्लम्बिंग की या इलेक्ट्रिसिटी की या कुछ चीज़ों की, तो वो बॉक्स है RL हमारा, राइट। अब उसमें क्या है, RL बॉक्स में अगर हम देखें तो क्या चीज़ है, उसमें सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास एजेंट है, उस इंटेलिजेंट सिस्टम को ही हम एजेंट कह रहे हैं, राइट। और ये जो एजेंट है हमारा, ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है गाइस, दिस इज इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। अब तो ये चीज़ भी हमें समझ में आने लग गई है कि सब ये एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, राइट। और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते साथ इसके साथ दो चीज़ों का केस होगा, या तो इसको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, राइट, या फिर उसको मिलेगा पनिशमेंट। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हो गई, पनिशमेंट इज देयर, राइट। और एनवायरनमेंट भी आगे चल के थोड़ा सा देखेंगे, एनवायरनमेंट भी आगे दो टाइप के हो जाते हैं, एक एनवायरनमेंट जिसको हम लोग कहते हैं नोन एनवायरनमेंट, और एक एनवायरनमेंट जिसको हम लोग बोलेंगे अननोन एनवायरनमेंट, गाइस, अननोन एनवायरनमेंट इज देयर, ओके। एंड नाउ व्हाट
what the agent is doing, what is the ultimate goal of the agent? Ultimate goal of the agent is that, guys, that agent has to take actions, right? So actions are performed, right? Actions are performed to maximize the rewards. तभी तो goal achieve होगा, right? To maximize rewards. This is how your entire scenario is working, right? So this is how your entire scenario in the reinforcement learning, is there. अब हम particularly कुछ चीज़ों की बात करें कि सब वो एरिया जो हॉट एरियाज जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो हॉट एरियाज फिलहाल कौन से हैं जिसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग का काफ़ी दखल होने लग गया है, काफ़ी चीज़ें अब यूज हो रही हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, उनको हम कुछ देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई अगर आज हमसे पूछा जाए कि सब रीइंफोर्समेंट लर्निंग ठीक है, मुझे समझ में आ गई, बट इसको कहाँ पे यूज किया जा रहा है? जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको अभी रिसेंटली दिए थे रिगार्डिंग ड्राइवरलेस कार्स और दिस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स एंड ऑल। बट और अगर हम डे टू डे लाइफ के बारे में बात करें तो where it is being used. So I'm talking about reinforcement learning, and let's say I say where it is used, right? So where it is used, I'm talking about that. And now पहली चीज जिसको मैं समझ रहा हूँ वो है it is being used in manufacturing, guys. मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज होती है ना, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है चीज़ों का, उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसको कहते हैं। और उसमें क्या कहाँ पे यूज हो रहा है? वहाँ पे जो फैक्ट्री रोबोट्स हैं, राइट? फैक्ट्री रोबोट आजकल यूज होने लग गए हैं, एंड दे यूज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। उन रोबोट्स का क्या काम है? उन रोबोट्स का काम है फैक्ट्री या जो वेयर हाउस है वहाँ पे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, या सामान को पैक कर देना, या किसी जगह पे सामान कुछ रखा हुआ है तो सही आइटम को या सही सामान को ही वहाँ से पिक करके लाना। ये सब चीज़ें जो पहले एक तरह से ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि वहाँ पे पहले लेबर काम करा करती थी, वो था, बट अब उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया है? रोबोट से रिप्लेस कर दिया गया है। और इसमें हम चाहें तो कुछ मैं शायद एक एग्जांपल देख सकता हूँ, गाइस। एक चीज़ जो मुझे शायद देखनी चाहिए। लेट मी गिव यू, देयर इज अ कंपनी इन यूएस। वो कंपनी क्या है? वो कंपनी है जिसका नाम है, गाइस, बोस्टन डायनेमिक्स। ओके, that company is Boston Dynamics, and they make robots, and those robots are very intelligent basically, and reinforcement learning के बेस पर ही उनको रेडी किया गया है, राइट? reinforcement learning के बेस पर ही उनको रेडी किया गया है। जैसे कि आई थिंक दिस इज वन ऑफ द video from Boston Dynamics, for example. So can you see, guys, this is from Boston Dynamics, right? And they have made very intelligent robots. So see this, guys, this is we have. So they have trained it that way only, right? So right, in a slow motion. So that is there. Maybe we can have something else also. Let's talk about probably this is also there. One short video we have. I think again this is from Boston Dynamics. Yeah, it's also again a Boston Dynamics. So for different purposes, they have used, let's see.
so that so this is, you know, out there, and recently I think they have been working in this domain for last you know 7-8 years, and just a minute. So we have this. So that you can see that they are training these, you know, robots in different environments, and all of these environments are real rough environments, right? All of these environments are rough environments only, and they have been, you know, trying to, you know, train them, and this is all reinforcement learning, guys. You know, this is all reinforcement learning examples, because the agent, in this case, this agent is robot here, guys. You know, the robot is taking a feedback from the environment, and you know that feedback is either positive or it's negative. You know, so they are trying to see. So, so it's there. Uh, okay, so I think we are done. So this is, you know, and these kind of robots are deployed in manufacturing, guys. You know, and probably they are trying to build. Even in India, there is a company called Gray Orange, guys. ये Boston Dynamics तो US की है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में भी एक कंपनी है जो इस तरीके के काम कर रही है. I think the name of that company is Gray Orange, Bangalore based, right? So that is there. The second kind of a use is like inventory management. कहाँ पे यूज हो रहा है उसको हम लोग RL को यूज करते हैं इन्वेंट्री के मैनेजमेंट में. And what is that inventory management, guys? That inventory management में कई बार, you know, ऐसा होता है ना कि तुमने देखा होगा, और हमने ये काफ़ी लोगों से बात भी की इस बारे में, कि कोई कंपनी है, राइट, जो कुछ सामान बनाती है. वो सामान बनाने के लिए उसको बहुत सारे रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, राइट. बहुत सारा कच्चे सामान की ज़रूरत होती है उसको, जिनका यूज़ करते हुए वो एक फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाती है, राइट. तो कई बार तो क्या होता है कि उनके इन्वेंट्री में यू नो प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं है, तो पता लगा यार कल के लिए तो ये सामान ही नहीं है, अब क्या करें, तो प्रोडक्शन बंद करना पड़ा, राइट. कई बार ऐसा होता है कि सामान पहले ज़्यादा ऑर्डर कर दिया और अब वो पड़ा हुआ ही है, तो स्पेस का ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रहा है, सही ढंग से यूज़ नहीं हो रही है. प्लस यू नो क्योंकि कुछ सामान तो है नहीं, कुछ सामान एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, एक तरह से वो ऑप्टिमाइज नहीं है. तो इस तरीके की चीज़ों के को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक तो सही तरीके से पता चल जाए वेल इन एडवांस कि भाई हमें किस चीज़ की कमी होने वाली है, राइट. तो जिससे कि उसका टाइमली ऑर्डर प्लेस किया जा सके, या ये चीज़ पता चल सके कि ये भाई हमारे साथ जो है यू नो एक तरह से सरप्लस में जा रही है, इसकी नीड नहीं है. तो ये सब चीज़ों को हम एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू यू नो यूज करते हैं. सो एंड दैट इन्वेंट्री मैनेजमेंट ओबियसली यू नो ये एक क्या है, अगेन जो सिस्टम इसको मैनेज करेगा इन्वेंट्री को, वो एजेंट कहलाएगा.
और वो एजेंट इन्वेंट्री एनवायरनमेंट से ही फीडबैक ले रहा है, राइट, शुरू में, और हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है. दैट इज देयर. The third example could be a delivery management, right? Third example could be delivery management. Delivery management में simple सा process है कि जो Amazon या Flipkart के जो delivery person होते हैं उनको इस तरीके से एक तरह से सिस्टम दिया जाए कि वो एक सिंगल ट्रिप में मैक्सिमम डिलीवरीज कर पाएं, कि यहाँ पर डिलीवर किया, यहाँ पर डिलीवर किया. ऐसा नहीं हो कि भाई एक गया यहाँ डिलीवर करके आ गया, फिर दूसरा जो है फिर दूसरी डिलीवरी वो इधर कर रहा है और फिर तीसरी डिलीवरी करने के लिए फिर वो इधर इसी रास्ते पे गया है. तो पहले इस रास्ते पे गया, फिर वहां से लौट के आया, फिर दूसरे रास्ते पे गया, वहां डिलीवर किया, फिर तीसरे रास्ते, फिर से उसी रास्ते पे गया है तीसरा डांस. नहीं, I think there should be a policy that जो उस पाथ को ऑप्टिमाइज करके मैक्सिमम डिलीवरीज पॉसिबल कर सके, सो जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्प्लिट डिलीवरी. दिस इज कॉल्ड एज अ प्रॉब्लम ऑफ स्प्लिट डिलीवरी गाइस. अ प्रॉब्लम ऑफ स्प्लिट डिलीवरी. या फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि दो बंदे हैं, वो भी इसी रास्ते पर डिलीवरी करने जा रहा है और वो भी इसी रास्ते पे, तो एक बंदा तो इस बंदे को डिलीवर कर रहा है, दूसरा डिलीवरी मैन इसको कर रहा है, तो वो भी एक अनऑप्टिमाइज्ड वे है. सो these problems, the companies are trying to solve these kind of optimization problems using reinforcement learning, guys. Using reinforcement learning. And the fourth sector which is using reinforcement learning nowadays is called as finance sector. हमारे पास एक फाइनेंस सेक्टर है और इस फाइनेंस सेक्टर्स में एक तरह से इस तरीके के कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करना है या इस तरीके के स्मार्ट सिस्टम को डिजाइन करना है जो एक तरह से ऑटोमेटेड वे में ट्रेडिंग और इन सब चीज़ों को मैनेज कर सके. वो यहाँ पे है. सो काइंड ऑफ ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है गाइस. इट्स नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट. एंड कि साहब यही सिर्फ रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज है, आप गूगल करोगे तो आपको सैकड़ों एग्जाम्पल्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कि किस तरीके से चीजें रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू की जा रही हैं. ठीक है. नाउ गाइस, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट. रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है बेसिकली वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है. इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है. अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर आपकी मास्टरी तय है. 100% आप उस चीज में बहुत अच्छा कर पाओगे. और वो क्या कर पाओगे? reinforcement learning is combination of two sciences. Okay, so if I say reinforcement learning, it is combination of two, एक तरह से हम ये कर सकते हैं two science from computer science. computer science से दो चीजों को मिक्स करके ये चीज बनाई गई है. एक कॉन्सेप्ट तो कहलाता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग. this is known as dynamic programming. ओके, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ते हो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में, राइट. मुझे नहीं पता है कि क्या ये सब्जेक्ट आपके आया है, सो प्लीज़ मुझे एक बार बताएं कि आपने क्या इस तरीके के किसी भी टॉपिक जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं या एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ आपने पढ़ी है गाइस? प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए. ये यस और नो में क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आया. गाइस, कपल ऑफ देम आर सेइंग नो एंड कपल ऑफ देम आर सेइंग यस. कौन बता पाएगा इस बारे में? who is going to respond me? Can someone give me the answer, guys? क्या सीन है ये? Is dynamic programming a topic or something, a concept? ये आपको पता है guys? कुछ किया है इसके बारे में आप लोगों ने? ओके, सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा नेक्स्ट जब भी अपना सेशन होगा.
उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा, बिकॉज उस आइडिया को समझना बहुत ज़रूरी है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या अप्रोच है पहले मैं उसको बता देता हूँ। सो जनरल अप्रोच तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम ये लेते हैं कि लेट्स से हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है गाइस, यू नो दिस इज अवर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं कि सब पहला ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये, ऐसे करके। सो वी डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर वंस एंड नाउ वी सॉल्व देम इंडिविजुअली। अब उनको हमने लेट्स से इसको P1 P2 P3 P4 कर दिया, तो इसका सॉल्यूशन बनाया लेट्स से A1, देन इसका A2 एंड देन इसका A3 एंड देन इसका A4। सो इंडिविजुअल सॉल्यूशंस हमने बना लिए बिकॉज वो करना आसान है। फिर हम फाइनली क्या करते हैं कि क्लब ऑल ऑफ देम, हम उन सबको इंटीग्रेट कर देते हैं एंड दैट इंटीग्रेशन बिकम्स द सॉल्यूशन टू ओरिजिनल प्रॉब्लम। दिस इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, राइट। वो प्रॉब्लम कैसे स्प्लिट होगी आगे, फिर हम उसको कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे, वही सब चीजें डायनेमिक प्रोग्रामिंग का हिस्सा बनती हैं, राइट। और बड़ा वो शायद आपको पता नहीं होगा कि ये जितनी भी बड़ी कंपनीज है, लेट्स से फेसबुक हो गई या एप्पल हो गई या फ्लिपकार्ट हो गया या पेटीएम हो गया या न्यू सिग्मा हो गया, राइट, या सेंसर टावर हो गया, जो भी बड़े नाम है डेटा एनालिटिक्स में, या S2O हो गया, ये लोग बड़ा फोकस करते हैं कुछ चीज़ों पे, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स पे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे, आपके सॉर्टिंग पे, सर्चिंग पे, आपके कुछ और एल्गोरिथम्स जो कि इस डोमेन में आती हैं, वो बड़ा फोकस करते हैं इन चीज़ों पे। तो अगर किसी का एस्पायरेशन है फ्यूचर में ऐसी कंपनीज के लिए, तो वो तो कोई चॉइस नहीं है एक्सेप्ट इनमें मास्टरी करना, इनमें अपने आप को बेहतर बनाना, अच्छा बनाना, ठीक है। सो दिस इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग गाइस। और जो सेकंड कॉम्बिनेशन है, मतलब फर्स्ट चीज तो ये हो गई RL, और सेकंड कॉम्बिनेशन है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सो गाइस सो सुपरवाइज्ड लर्निंग, वो मैं आपको बता चुका हूँ y=fx वाले एग्जाम्पल से। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जन्म हुआ है, राइट। सो this is how you can see RL, right? So RL is basically a combination of dynamic programming, which comes from data structures and algo, a segment of computer science domain, and supervised learning, which is obviously from machine learning. अब किसी भी guys, किसी भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग के 3 मेजर हिस्से होते हैं। तो अब मैं धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करता जाऊंगा चीजों को, नेक्स्ट सेशन में तो हो सकता है थोड़ा सा और भी नेक्स्ट लेवल पर चले जाएं गाइस। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, राइट, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में 3 चीजों का एक तरह से हिस्सा होता है। सो वी कैन से parts of reinforcement learning. Parts of reinforcement. What is? First part is known as environment, जिसको हम थोड़ा सा पहले define कर ही चुके हैं. So this is the first part of the reinforcement learning. The second part is called as reinforcement function. This is called as reinforcement function, guys. Okay. जिसको हम एक तरह से रिवॉर्ड या पनिशमेंट के फॉर्म में भी जानते हैं, ठीक है। और तीसरा पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम वैल्यू फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको गाइस? वी कॉल इट इज अ वैल्यू फंक्शन। इन 3 चीजों से ही रीइंफोर्समेंट लर्निंग बनी हुई है। पहली चीज तो फिर भी थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग गया, एनवायरनमेंट क्या है, और डिटेल में हम जानेंगे ऑब्वियसली। रीइंफोर्समेंट फंक्शन के बारे में एक तरह से हम जान ही चुके हैं। तो बेसिकली रीइंफोर्समेंट जो फंक्शन है उसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि एजेंट को वो ही काम करने हैं दैट विल मैक्सिमाइज द सम ऑफ रीइंफोर्समेंट्स रिसीव्ड, राइट, रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स रिसीव्ड, राइट। सो इस तरीके की चीज यहाँ पे उसके गोल को अचीव वो तभी करेगा, राइट। गोल को अचीव करने के लिए उसको क्या करना है, जितने भी एक्शंस वो ले रहा है उनके करस्पॉन्डिंगली, राइट, उनके करस्पॉन्डिंगली उसको क्या रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो मैक्सिमाइज होने चाहिए, राइट। तो वो रीइंफोर्समेंट फंक्शन का काम है
और तीसरी जो प्रॉपर्टी जिसको हम बात कर रहे हैं वैल्यू फंक्शन की, वो एक थोड़ा सा एक समझने वाली चीज है जिसको हम नेक्स्ट वीक में अच्छे से समझेंगे कि वैल्यू फंक्शन क्या है। और उस वैल्यू फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू फंक्शन ही एक ऐसी चीज है जिसका आगे हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि भाई कैसे हम अपने फाइनल गोल तक पहुंचेंगे। वो तरीका उस वैल्यू फंक्शन के अंदर ही छुपा हुआ रहता है, राइट। तो ये आज की कहानी थी गाइस।